یہ کہانی ایک بھوتیا حویلی کی ہے جس کا مالک سردار تھا، جس کے دو بیٹے تھے، ذیشان اور ریان۔ اور اس نے اپنی جب جائیداد کا حصہ کیا تو یہ حویلی ذیشان کے نام آئی، اور ذیشان باہر کے ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا اور وہیں پہ اس نے شادی کی، اور اب کئی سالوں کے بعد وہ واپس آ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بہت زیادہ منع کیا کہ اس حویلی میں سٹے نہ کریں، لیکن وہ باضد تھا کہ اس حویلی کو صاف کروایا جائے، وہ اپنی فیملی کو لے کر اسی میں ہی رہے گا۔ چند دن کے لیے تو میں آ رہا ہوں اور میں اسی میں ہی سٹے کروں گا۔ وہ بہت باضد تھا۔ آخر کار وہ اپنی فیملی کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پر اترتا ہے، اور وہ کئی سالوں کے بعد پہلی بار اپنی فیملی کو لے کر پاکستان کے لیے آتا ہے، اور اس کو لینے کے لیے اس کا چھوٹا بھائی اور بھابھی اس کا ویٹنگ میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں سے اس کو لے کر اس کی حویلی میں پہنچا دیتے ہیں۔ چلو بھائی اور بھابھی کو تو ہم نے ٹیکسی کروا دی ہے، چلو ایسے کرتے ہیں، ماں انتظار کر رہی ہوگی، اب ہم بھی گھر کے لیے نکلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے، بیٹی بھی انتظار کر رہی ہوگی، ماں کو بھی خبر سنا دیتے ہیں کہ بھائی صاحب آ گئے ہیں۔ ماں حویلی میں ہی اپنے بیٹے، بہو اور چھوٹے پوتے سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ ارے میرے بچے، تو ایسا گیا، دوبارہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیا، تو نے پورے 12 سال کے بعد واپس آیا ہے، تجھے کیا پتا ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، تمہیں بہت دعائیں دی، اور میں بہت خوش ہوں تم بہت کامیاب ہو کر واپس آئے ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ ارے تم تو کہتے تھے میں پورا پاکستان گھوموں گا، اب تھوڑا سا ہی سیر کر کے تھک گئے ہو کیا؟ بیٹھ گئے ہو یہاں پر؟ چلو چلو اٹھو، ابھی ہمیں دوسرے پارک میں بھی جانا ہے، میں تمہیں اپنے یہاں ساری جگہ کی سیر کرواؤں گا۔ سیر کے بعد آج ان کی اپنی ماں کے گھر میں دعوت بھی ہوتی ہے۔ ارے سلطانہ، تمہیں نہیں پتا، وہ لوگ باہر کے ملک سے آئے ہیں، ان کے لیے یہ والے دال چاول نہ بناؤ، ان کے لیے اسپیشل کھانا بنواؤ، یا ایسے کرو KFC سے کچھ برگر وغیرہ منگوا لو، وہاں سے کچھ نہ کچھ منگوا لو جو کہ میرے پوتے کو بھی پسند آ جائیں۔ اچھا سا کھانا تیار کرو اور اچھے اچھے برتن نکال لینا، اور یاد رکھنا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا بیٹا پھر جائے گا، پتہ نہیں کب واپس آئے گا، پھر دوبارہ 1 مہینے کے لیے تو آیا ہے، اور اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ ہو۔ میرے بچوں، آج مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، آج میرا گھر بھر گیا ہے، آج میرے سارے بچے موجود ہیں گھر میں، میں بیان نہیں کر سکتی کہ آج میں کتنا خوش ہوں، میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں آج۔ شام کو اس کا چھوٹا بھائی ریان اس کو حویلی میں واپس چھوڑنے چلا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی حیران ہوتا ہے، وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کچھ پریشان سا بھی ہو جاتا ہے۔ ذیشان، میں نے غور کیا ہے، جس دن سے ہم حویلی میں آئے ہیں سونو کچھ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھو ہر وقت ہی اکیلا ہی باتیں کرتا رہتا ہے، دیواروں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، میں تو خود بڑا پریشان ہوں اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر، میں بھی کل سے بہت ہی زیادہ نوٹ کر رہا ہوں، یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا جا رہا ہے۔ سونو کو لے کر اس کے والدین واقعی بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ واقعی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن رات کو اچانک جب سونو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوتا ہے تو اچانک سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شیطانی چیزیں اس کی طرف مائل ہونا شروع ہوتی ہیں اور سونو کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو چڑیل تم ہو جو میری فیملی کو اتنا تنگ کر رہی ہو، تم چلی جاؤ، بھاگ جاؤ ہمارے گھر سے، تمہارا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے اس گھر سے، یہ میرا گھر ہے اور میرے بچوں کا گھر ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، میں تم سب کو کھا جاؤں گی۔
यूं ही गुजर जाते हैं और मामला ठंडा रहता है। हानिया सोचती है क्यों ना वो अपनी दोस्त से मिलने जाए। वो अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है। जब वो अपनी दोस्त से मिलकर घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी दोस्त भी उसको अजीबोगरीब हक़ाइक़ इस हवेली के बारे में बयान करती है, जिसको लेकर हानिया और भी परेशान हो जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस हवेली के किसी भी बंदे को। इन्होंने तो मुझे बहुत आसान लिया हुआ है। अब मैं बताती हूँ इन लोगों को। ये लोग क्या समझते हैं, अभी मैं इनका हल करती हूँ। सुनो तुम लोग, ऐसे करो, तुम दोनों जाओ और उस बंदे को उठा कर लाओ। जब ज़ीशान अपने दोस्त से मिलने के लिए हवेली से बाहर निकलता है, अभी वो चंद कदम दूर ही जाता है कि चुड़ैल उसका इंतज़ार कर रही होती है। रुक जाओ, तुमने क्या सोचा था? तुम हमसे बचकर निकल जाओगे? तुम हमारी मालकिन को तंग करोगे और बच जाओगे? तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। तुमने हमसे पंगा ले लिया है। अपनी ये घटिया बकवास बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। क्यों तुम लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को तंग करना शुरू किया हुआ है? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। याद रखना, मैं बिल्कुल नहीं डरता तुम लोगों से। तुम लोगों को डरने का कौन कह रहा है? तुम हमारी ताकत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप देखा, एक चुड़ैल का मुकाबला करने चले थे। चुड़ैल उसको घसीटती हुई पूरी हवेली में से निकाल कर ले जाती है और वो उसको बता देती है कि वो यहाँ पर कितने सालों से क़याम पज़ीर थी। अरे आपको कुछ पता भी है? भाई साहब को चुड़ैल पकड़ कर ले गई है और माजी और बाबूजी बड़े ही ज्यादा परेशान हैं और उनका बेटा तो रो रो कर हलकान हो जा रहा है। मैं उसको संभालती हूँ। आप माजी के साथ जाकर उनकी मदद करें भाई साहब को ढूंढने के लिए। और भाभी अपनी दोस्त के घर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। उनको भी इत्तला करें, जाए ना प्लीज, जल्दी करें। सब बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको मैं कब से फोन मिला रही थी और आप फोन उठा ही नहीं रहे थे। अब जाकर आप घर वापस आ गए। अरे अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम सोनू को संभालो, मैं कुछ करता हूँ। मैं माँ जी से पूछ कर आता हूँ कि अब क्या करना चाहिए हमें। बाबूजी को तो बहुत पता है इस बारे में। तुम्हें पता है ना कि बाबूजी को भी ऐसे ही एक बार चुड़ैल उठाकर ले गई थी, फिर उसका क्या बुरा हश्र किया था बाबूजी ने। तुम ऐसे करो, सोनू को जाकर अंदर खाना पीना खिलाओ और भाभी का मैं व्हाट्सएप तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम उनको भी कॉल करके बुला लो। और तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो ना, बच्चा डर जाएगा। और वो लोग बाहर से आए हैं पहले ही। अरे नहीं नहीं सोनू बेटा, तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे। तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे दादाजी है ना, उनको भी एक बार यही वाली चुड़ैल पकड़ कर ले गई थी। फिर तुम्हारे दादाजी ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया था और वो डर कर भाग गई थी। इधर बैठो जरा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरह से चुड़ैलें उनके पास आई थी। हमें ये हवेली चाहिए। देखो, इस मालिक का, इसका हवेली का मालिक सरदार है ना, उसको उठा कर लाना है और तुम जल्दी से जाओ और उसको उठा कर लाओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ उठाकर। मैं जल्द वापस आऊंगी, मैं जल्द वापस आऊंगी। तो ये हवेली है। अब मुझसे वो सरदार बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। अच्छा तो तुम यहाँ पर लेटे हुए हो मोटे सरदार। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपनी मालकिन को बता कर आती हूँ कि तुम यहाँ पर लेटे हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा भारी हो, मोटे कहीं के, खाना ही बहुत खाते हो। अरे वो मोटा तो बहुत ही ज्यादा भारी है, मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा। ऐसे करो, तुम मेरे साथ चलो, फिर हम दोनों उसको
अपने मालकिन को सौंप देंगी। तुम्हें भी मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी, फिर हम दोनों को बदले में बहुत इनाम मिलेगा और हमें भी इस हवेली में रहने को मिलेगा। इतना कहते ही दोनों चुड़ैलें सरदार को उठाने के लिए चली जाती हैं। अरे ये देखो यहाँ पर लेटा हुआ है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि इसको केले को उठाना बहुत मुश्किल है। चलो ऐसे करो, तुम मेरे साथ इसको उठाओ और हम अपने सरदार के पास पहुँचाते हैं इसको, फिर इसको समझ आएगी। हमसे कोई बच नहीं पाएगा, ये हवेली सिर्फ हमारी होगी। देखना, हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हो सकता है हमें हवेली में रहने का मौका भी मिल जाए। हमारी चुड़ैल तो बहुत दयालु है, हमारी मालकिन। सरदार और उसकी बीवी अपने बेटे ज़ीशान को ढूंढने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो पूरे गांव की जगह जगह जहां पर पता चलता है कि यहाँ पर चुड़ैल का साया है, वहां पर उसको ढूंढते हैं। देखो मेरे बच्चों, तुम सब मिलकर नमाज और कुरान पढ़ो और मिलकर दुआ मांगो। इंशाल्लाह हम इस चुड़ैल से पीछा छुड़वा लेंगे। एक बार वो मुझे भी ले गई थी, फिर मैंने भी अल्लाह का नाम लिया था और मैं आज़ाद हो गया था। तुम सब मिलकर अल्लाह के सजदे में जाके गिरो और नमाज पढ़ो और सब दुआ मांगो और चारों कुल पढ़ पढ़ कर अपने पूरे घर में फूंक को मारो और अपने ऊपर भी फूंक मारो। इंशाल्लाह उस चुड़ैल का साया इस हवेली से चला जाएगा। मैं हूँ सरदार चुड़ैल, मुझसे मुकाबला करने चली है बुढ़िया। मैं तुझे बताती हूँ मुझसे मुकाबला करने का। तू अपने शोहर को रोक दे, तो वो मेरे खिलाफ ऐसी साजिश चल रहा है, जरूर पड़ रहा है। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। रात चुड़ैली की सरदारनी आई थी और वो मुझे बहुत डरा कर गई है। उसने कहा है अपने शोहर को रोको कि वो मुझे तंग ना करे। अरे प्लीज कुछ करें, अब उसको रोकना होगा। इसके बाद तो वो हम लोगों को खाना या मारना शुरू कर देगी। हमें जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो तो अब घर आकर परेशान करना शुरू कर दिया है उसने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चुड़ैली तू कहाँ पर है? यहीं पर पेश हो जाओ। इस दरख्त के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा वरना। अल्लाहु अकबर। मुझे छोड़ दे, तुम मुझे छोड़ दे मुसलमान बंदे, तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे आग क्यों लग रही है? मुझे छोड़ दो, मैं इस हवेली से चली जाऊंगी। मुझे बचाओ कोई। तुम दोनों का तो मैं फिर पूछूंगी। मुझे छोड़ दो, मेरी जान क्यों निकल रही है? मुझे आग क्यों लगा रहे हो जालिमा? देखो मेरे बच्चों, अपना बहुत ध्यान रखा। मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोग इतनी दूर से हमसे मिलने आए हो। लेकिन मेरे बेटे ज़ीशान, याद रखना, अगली बार तुम आओगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये काम और कारोबार तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ऐसे करो, पाकिस्तान में ही कोई काम कर लेना। अब की बार तुम आओ तो वापसी का बिल्कुल भी नहीं सोचना और हम इंशाल्लाह सब मिलकर इस हवेली में ही रहेंगे। और तुम लोग जल्द अज जल्द वापस आना मेरे बच्चों। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम लोगों के लिए दुआ करती रहूंगी। इस तरह ज़ीशान की पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ बहुत ही यादगार महीना यानी कि उसकी छुट्टियां वेकेशंस गुजरती हैं और वो हमेशा याद रखेंगे। और वो अमेरिका जाने के लिए दोबारा से फ़्लाइट पकड़ लेता है। इस तरह वो पाकिस्तान को अलविदा कह देता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।